Welcome back to Arrival Podcast, where we uncover unseen stories, unheard voices, and inspiring journeys of women who carve their own path. Today, I'm joined by Jhalak Maheshwari. She is chef cum teacher. She runs her own institute, variant cooking classes in Ahmedabad. Let us know more about her by herself. Welcome, Jhalak. Thank you. Hi, Mansi. Firstly, though, I'm very glad to be here. Thanks for invite. Mm-hmm. I'm Zalak Maheshwari, and I'm running variant cooking and baking classes, kind Huh. of a culinary institute in Ahmedabad. Mm-hmm. Um, yeah, what can I say? Or It's like uh, something my mom has started, and oh, now I have just expanded, I can say. The idea behind goes to my parents definitely. uh-huh. उन्होंने ये शायद घर से थोड़ा बहुत उन्होंने चालू किया था. Firstly, she tried to taking some cooking classes from as for hobby, I can say. उनको बहुत अच्छा लगता था कुछ बनाना. Gradually, she thought कि चलो मैं किसी को सिखाती भी हूँ, कुछ काम करूँ, something like that. So she has और started, I guess I was in a school at that time, and she has started taking some classes for some cakes and all. Gradually, ओके. she also got a good response. तो उन्होंने बढ़ाया. After I तो married, झलक that, सॉरी so I can say my झलक तो ये cooking आप journey, yeah, हाँ cooking हाँ journey starts from my school days, most probably. ओके. And और ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो जब आपकी मम्मी ने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट किया? we have shifted in Baroda in 1996, and I ओके. guess after 3 4 years, I don't know exact year, but हाँ around हाँ 98 or 2000, she might have started that because I was very small at that time. I don't remember even. हाँ Uh, हाँ. yes, but the ओके. gradually she got a good response. That one हम्म expanded. हम्म After I married he in Ahmedabad, and हम्म. I started my career in HR first. But ओके. gradually, uh, I am expecting, and once I my son has arrived, हम्म. उसके बाद ऐसा लगा कि अभी मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं कुछ अपना करूंगी. Something like that. ओके. I have a thought. So हाँ हाँ. the first comes in a mind is a cooking. चलो मैं भी क्लासेस लेती हूँ. ओके. And my papa has also said कि like चलो तू तो इतना मस्त करती है तो स्टार्ट कर फिर देखते हैं करके. तो I just बोलते रहे कि हाँ चलो लगा तो लगा नहीं तो शायद कुछ और कर लेंगे ऐसा था स्टार्टिंग में. But I started. हम्म. I just told at my home. हस्बैंड को बोला, हम्म. मम्मी पापा को बोला कि मुझे कुछ करना है करके. तो दे हाँ. आर ऑल्सो एनकरेज कि हाँ चलो कर कर तू कर ऐसे करके. So I started taking some classes, and हम्म. I really happy कि मुझे मैं खुद सरप्राइज थी कि I've got so good response, so good reviews from the students in here in Ahmedabad. And हाँ. after Corona, we are actually thinking to try something big, something. So उसके बाद Corona time के बाद we have purchased our own office. We have started our ओह own नाइस. studio, and it's going on. Yeah. ओके. तो झलक आपने आपके जर्नी के बारे में बताया तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आपके स्टूडेंट्स कौन होते हैं? आर दे मोस्टली विमेन और कैसे आपके वेरिएशंस कैसे आपके स्टूडेंट सेगमेंट में? Students are mixed, not only women. Yeah, 70 80 ओके. percent are girls and ओके. women's both. हम्म. But we have so many boys also, particularly in the culinary or cooking field. Even for the baking, so many boys are coming, and they are doing really really great. In starting मुझे लगता था कि मैं लड़कों को कैसे पढ़ाऊंगी, but once they have हम्म. started, some are really really fresher. They never entered in the kitchen, but ओके. gradually उन्होंने उनको सिखाया. They have trained very well, and आजकल कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट हैं पुराने. They are actually doing well. हम्म. Some have started their cloud kitchens. Some are really working with some good restaurants. And I just ओह. even surprised कि इतने boys भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं. Yeah. ओके. तो ये गर्ल्स और बॉयज हो गए
और कोई लेडीज भी आते हैं आपके इधर, और इनका यूज केस क्या है? मतलब आर दे विमेन जो शादी करने वाले हैं वो आ रहे हैं, या फिर कोई बॉयज एंड गर्ल्स जो यूएसए या आउट ऑफ इंडिया जाने वाले वो आ रहे हैं? उनका यूज केस क्या है, क्यों आ रहे हैं वो कुकिंग क्लासेस में? ये तो घर पे भी सीख लेते हैं, राइट? ऐसा सब बोलते बेसिकली सी आजकल यू कैन सी नावाडेज बहुत रेस्टोरेंट्स ओपन हो रही है. पीपल हैं। आर स्टार्टअप इन अ फूड, दे आर स्टार्टअपिंग देयर फूड, बहुत सारे चल रहे हैं. सो हम्म। काफी सारे प्रोफेशन दिमाग में लेके भी आ रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट कि उनको कुछ अपना स्टार्ट करना है या फिर ये ओके। फील्ड में जाना है. सो मैनी हम्म। बाहर के स्टूडेंट भी आ रहे हैं कि दे हैव टू परस्यू सम डिग्रीज इन कुकिंग फील्ड और सम वांटेड टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, वैसे भी रहते हैं. ओके। मोस्ट ऑफ कैरियर ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं. हाँ, ओके, समझा, करियर ओरिएंटेड ज्यादा है। ओके। तो ग्रोइंग अप आपने हमेशा तो ये इमेजिन नहीं किया होगा कि आप शेफ या कुकिंग क्लासेस लोगे, बट आपने क्या ये इमेजिन किया था कि आप एक खुद के एंटरप्रेन्योर बनोगे? या दैट्स डेफिनेटली इन माय माइंड. इवन वो जॉब करते थे ना उस टाइम पे भी था कि यार ये मेरे काम का ही नहीं है, मुझे मेरा कुछ अपना करना है. So हाँ। that's ओके। always in my mind. हम्म। But I don't know okay, what extent I can go. So हाँ it's हाँ। become gradually, I can say. या स्काई इज द लिमिट। Yeah, अगर yeah. आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अहमदाबाद जैसे Exactly. शहर में आज वो बहुत बड़ा शहर माना जाता है, बट उस समय 2000 या फिर आई थिंक सो आप 2007-8 की बात कर रहे हो, आई गेस, राइट? Uh, no, no, not that much. We have started before 6, 7 years only in ओके। Ahmedabad. तो So 20, ओके, yeah. या सो 2018 अगर 2019 की भी हम बात करें, तो भी कुकिंग क्लासेस ये चीज अहमदाबाद में सारे फूडी होते हैं, Too बट much. गुजरात में सब फूडी होते हैं, बट उनका इंटरेस्ट कुकिंग करियर में है, ये बहुत एनॉमली है, अनकन्वेंशनल है। मोस्टली लोग वो करियर पाथ नहीं चूज करते, राइट? तो ये सब देख के एंटरप्रेन्योर आपके दिमाग में था, करेक्ट, बट एंटरप्रेन्योर ये वर्ड बहुत ग्लैमरस लगता है, राइट? न्यू बज वर्ड है, बट इसके ही अपने कुछ चैलेंजेस है। तो वुड यू लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग द जर्नी? और टेक्नोलॉजी, ये वो कौन सी चीज है आपको बहुत तकलीफ दी और आपने उसको सॉल्यूशन निकाला? क्योंकि ऐसे नारीज होंगे जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको शायद मन में कोई इच्छा होगी कि क्लासेस खोल दे, शेफ बन जाए, या फिर एक एंटरप्रेन्योर बने। तो उनके ऐसे क्या स्ट्रगल्स आपको लगते हैं उनको भी आएंगे? आप प्लीज आपका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताएंगे प्लीज। Correct. Yes, I can say it's has a both of thing. Some are करेक्ट। challenges, some are really positive things. Both are definitely there. You have to work both of the things. And या। for the girls or naris, whoever is there, they have something in a mind. I just wanted to tell them, uh, एक बार आपका ड्रीम के साइड आपको एक फर्स्ट स्टेप तो लेना ही लेना है. Than just work it out. For my challenges, I can say first thing is my family, my kid. उनको कैसे बैलेंस करें, इट्स माय फर्स्ट कंसर्न वाज देयर. मैं घर से कर रही थी तब तो इट्स रियली नाइस कि चलो मैं घर से थी, मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर सकती थी. बट नाउ द थिंग हाँ। लाइक आई हैव टू गो टू माय स्टूडियो, माय गो टू इंस्टीट्यूट फॉर द होल डे. And it's really difficult, even physically, mentally, both, to leave the home, even leave the kid. Mera son bhi, it's like just a 5, 6 years old at when I've started this institute. So ओके। मुझे ना थोड़ा दिल में होता था कि यार मैं उसको छोड़ के आ रही हूँ, वो बराबर होगा कि नहीं. That is the हाँ, वो first thing in एक my mind. अफेक्शन होता है, अफेक्शन होता है मदर के अंदर, और एक गिल्ट भी होता है कहीं ना कहीं कि वी आर परसिंग आवर ड्रीम, तो हम किसी को इम्बैलेंस तो नहीं कर रहे हमारे तो वजह से, एक मैं ऐसा yes, डर, मैं गिल्ट होता बिल्कुल है। छोड़ूं, दैट वाज माय थिंग कि चलो मैं ये काम करूं या फिर उसको ही देखूं. दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज फॉर मी. कि मुझे ऐसा थोड़ा लगता भी था कि चलो मैंने भी घर छोड़ के आ रही हूँ, मैं फैमिली छोड़ के यहाँ पे काम कर रही हूँ वैसे. यस, बट आई गेस आई गॉट रियली गुड फैमिली.
दे हैव सपोर्टेड मी टू मच अच्छे से हम्म। बट कैन से कि बहुत अच्छे से मैनेज हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ। even my mother-in-law father-in-law my husband they are really supportive so uh, yeah because of their support I can manage that thing एंड या बिजनेस चालू करते हो अपना कुछ स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ चैलेंज आने वाली है कि ये बिगड़ गया फाइनेंस मैनेज करने हैं हाँ। लाइक व्हाट कैन से कि चलो पानी का कनेक्शन खत्म हो गया पानी चला गया आई हैव हाँ। टू वर्क फॉर दैट स्मॉल थिंग करेक्ट। आल्सो ये सामान खत्म हो गया या। वो सामान खत्म हो गया सैलरी भी करनी है मुझे एम्प्लॉयज की so I have to work for each of the smaller detail to the maximum detail but yeah you have ओके। to deal with that. या। या। सो आपकी वर्कफोर्स कितनी है एंड व्हाट ऑल सेक्शंस डू यू हैव इन योर इंस्टीट्यूट एंड कैसे आपने काम बांटा हुआ है? आप क्या करते हो स्टार्टिंग में? आप सारा काम करते हो क्या? ऑफकोर्स अभी आपने थोड़ा डेलीगेट किया होगा, तो आपने कैसा ये स्ट्रक्चर किया, थोड़ा आप बता सकते हैं इन डिटेल? Um, yeah, starting I have like मैं पूरा करती थी preparations करते थे सब कुछ मैं ही करती थी gradually we I've had one people one एक assistant रखी थी मैंने now I have a three ओके। assistant with me दूसरे ओके। वर्कर भी है थोड़े बहुत कॉलिंग के लिए एक आदमी को रखा है सोशल मीडिया के लिए एक है अलग अलग तो some are ओके। part time some are for with me for the full time so I have built up my smaller team, very small team. I've just managed my some of the work to them. So it's going smoothly now and या। thinking to grow up them as well. Only as my assistant. So they are also हाँ, growing up. हाँ। Nice, nice. And when we say people of three, it's not a small, and running a company, it's not a small thing. So आप ये भी कर रहे हो, it's a very big thing that you do because हमें ये माना जाता है कि women should have it all, should do it all. But sometimes it's necessary to delegate few things if you need to survive and you need a sustainable business, right? तो आप हर चीज खुद नहीं कर सकते, और बिजनेस का एक पहला पार्ट होता है कि आप वो करो जो आप जिसमें अच्छे हो, बाकी का काम डेलीगेट करो। अगर आप सब काम करने लग जाओगे तो फिर हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बड़े बड़े कंपनीज भी देखेंगे, अगर हम अभी मैन्युफैक्चरिंग हो गई कोई भी हो गई, तो वो लोग उनका आईटी का काम एक आईटी कंपनी को दे देते हैं, फिनेंस का काम एक फाइनेंशियल कंपनी को दे देते हैं, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं। Yes. तो दैट्स व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड बिजनेस एंड अ गुड एंटरप्रेन्योर। सो Exactly. ये हो गई एक बात। आई आई गेट टू योर दैट आपकी फैमिली ने भी आपको बहुत तरीके से सपोर्ट किया है। Yes. बट देयर माइट बी सम फेज व्हेन आपको ऐसा लगा मैं क्विट कर दूं, तो ऐसी कौन सी चीज थी आपके माइंड में, या फिर ऐसा कौन था जिसने आपको पुश किया, फिर से उठाया? एंड क्या आप उसका कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते Yeah, I guess from the starting it happens lot of time. अभी भी होता है हैं? बहुत हाँ। बार. The thing was ये seasonal business है थोड़ा सा. So in starting I didn't get an idea कि ये off season आ ओके। गया. I have never managed that kind of a finances. So it हाँ। happens so many times कि चलो festival season है तो I have a stack period. मेरे पास कोई स्टूडेंट हम्म। नहीं है. लाइक अभी नवरात्रि चल रही है तो स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग सो वो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ ये भी मुझे मैनेज करना है आई हैव टू वर्क मोर इन अ वेकेशन टाइमिंग सो वी आर नाउ प्लानिंग लाइक दैट अवर वर्कशॉप्स एंड ओके। द थिंग्स वट एवर हमारी क्लासेस उस तरह से हम प्लानिंग भी करते हैं या फिर हमने हाँ। कुछ और एड ऑन किया है नाउ लाइक वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस आल्सो फ्रॉम लास्ट 2 years तो जब हम लोग फ्री होते हैं एट द टाइम वी आर डूइंग सम रिकॉर्डिंग्स एंड दैट थिंग सो इनिशियली मुझे नहीं हाँ। समझ में आ रहा था बट या बिकॉज आई हैव टू लाइक व्हाट कैन से कि मुझे स्मूथली मेरा स्टूडियो रन करना है तो फाइनेंस भी उस तरह से मैनेज होना चाहिए सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर ईच एंड एवरी डे राइट सो या। या। नाउ वी विल गेट एन आइडिया कि चलो ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं सो वी हैव एड ऑन some of things gradually ओके। yeah या, करेक्ट। और ये सीजनल है, ये पता करना भी एक एक्सपीरियंस की बात है। ओनली व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस आपको पता चलेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। और सीजनल है तो आपको उसमें कैसे एंगेजमेंट बना के रखनी ऑडियंसेस से। इवन इफ इट्स नवरात्रि, दे शुड नो कि देयर इज अ क्लासेस व्हिच इज कंडक्टिंग क्लासेस, आपको आना है तो यू कैन कम। सो वो एंगेजमेंट जो है
आज के तारीख में भी गो फॉर एंगेजमेंट एज इन इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और एंगेजमेंट करते हैं। तो यू आर यूजिंग दिस टूल विच इज अ वेरी गुड थिंग। जो Yes. ट्रेडिशनल बिजनेस को मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे लाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी न्यू चीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी फेस, राइट? Exactly. तो आपने वो रेजिस्टेंस को ओवरकम किया और आप न्यू मेथड्स और टूल्स को अपना रहे, इट्स अ वेरी गुड थिंग एज एन एंटरप्रेन्योर। तो यही सब आपकी क्वालिटीज, अगर कोई सुन रहा होगा तो वो देखेगा कि आपके अंदर परसिवियरेंस है, आप Yes, हार नहीं मान रहे हो। it's all about experience, I can say. But Yeah. what can say कि डरना नहीं है. You have to Yeah. think something. I can say something different. You have to think Uh-huh. something different and work on that. Yeah, that's what. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, can you is there a myth following over a chef कम टीचर और या फिर entrepreneur, जो मिथ आप बस्ट करना चाहते हो, जो लोग सोचते हैं कि ये जो नारी है जो ये काम करती है, उनके बारे में कोई किसी का कोई स्टीरियोटाइप, कोई थिंकिंग होगा जो आपको तोड़ना है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं ऐसा कोई? Um, yeah, I could say आज तक मुझे बहुत अच्छा appreciation मिला है definitely from हम्म। all of my people around me. हाँ हाँ। Uh, yeah, but in starting, of course, बोलते ना एक मेंटालिटी रहती थी कि चलो हाँ हाँ। हाँ वो घर से कर रही है, टाइम पास के लिए कर रही है, कुछ टाइम है इसके ओके। लिए, कुछ टाइम पास के लिए क्लासेस चला रही है। हाँ, तो लोगों के दिमाग में ओ। वो था, बट ग्रेजुअली दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि नहीं, कि कुछ अच्छा हो सकता है इस चीज में भी। हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन डू समथिंग गुड, गुड इनफ फॉर आवर फैमिली हाँ। एंड इवन फॉर पर्सनल। सो हाँ करेक्ट। या इट्स ऑलवेज देयर। मोस्टली वुमेन्स के लिए वो ट्रेडिशन होता है ना कि चलो हाँ तुझे करना है, टाइम पास कर ले अपने हिसाब से, वो हाँ दिमाग में सबके रहता है। बट आई हाँ। कैन से it's now for the future is from the girls. Uh, हम्म। they I don't know, but girls have something superpower in या them naturally. या। So हम्म। the thing was वो शायद सब कुछ मैनेज भी कर सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हम्म। होता है, but the thing was they can be patient and they हम्म। can do something different. Yeah, Yeah. Yeah, that's what I was that's going the to ask. main The thing for next the girls. question. Yeah. Yeah. यही मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली थी, कैसे आप कौन सा एडवाइस देना चाहते हो नारीज अराउंड यू। सो नारीज, प्लीज लिसन, झलक वही कह रही है, प्लीज बी पेशेंट, प्लीज बी डिसिप्लिन, प्लीज लिसन टू योरसेल्फ विद इन द वॉइसेस विद इन यू। Exactly. क्योंकि ऊंच नीच तो होने वाली है, आप होने कोई भी वाली हार्ड है पाथ जीवन में। लोगे, करेक्ट, आप हार्ड पाथ लोगे, इजी पाथ लोगे, ऊंच नीच होने वाली है। अपने खुद के पेरेंट्स से भी हमारी लड़ाई हो जाती है बिकॉज चेंजेस ऑफ व्यूज। तो वैसे लोग आने ही वाले हैं लाइफ में, रहने ही वाले हैं। तो हाउ डू यू ओवरकम इज द बिगेस्ट टास्क। एंड when you have supportive family, if your family is not supportive, make them understand, there are many ways to do that। या सो और झलक, आप ऐसा कोई एक चीज बोलना चाहते हो नारीज को कि वो हमेशा याद रखे? और सिंस यू आर अ शेफ, हम आपसे एक ऑल्सो क्विक रेसिपी जानना चाहते हैं, इफ यू आर, या एक हैक Okay. और एक रेसिपी आप जो शेयर करना चाहते Yes. Yeah. हैं। For the advice, I can say just follow your inner voice. आपको कुछ हम्म। करना है, then uh, don't rely like ऐसा मत करना कि उसको छोड़ देना. Just plan about it and हम्म। be calm, be patient. I can say be logical. Just या। do something towards your dream. Hurdles तो आने वाले ही है, but you can manage that. I'm definitely sure you can manage that. Yes. या, थैंक यू फॉर दैट। और एनी हैक और रेसिपी विच यू वांट टू शेयर विद आवर नारीज? Okay. Mm, for the recipe, it's so many things are there on our social media. For the हाँ। quick recipe, I can say for something like a brownie.
Okay. You can make a very quick brownie in your microwave also. Just Okay. take 1 spoon of a butter, 2 3 spoon of a Mm-hmm. sugar, powder sugar. Whisk it well, just with a spoon or something, and then add just a half cup of flour. You have wheat or maida, whatever you have. Mm-hmm. Just add some melted chocolate, 1 or 2 spoon. Mm-hmm. If you don't have, just add some dairy milk piece and just Okay. whisk it together. Add little milk or water to make it slightly liquid. Then pour this Uh-huh. whole mixture into your coffee mug. Microwave it just Uh-huh. for 2 minutes. You will get your brownie. Just 2 minutes. Our kids' special workshop recipe. So they Oh. are never have the patience. They want Hmm. everything in within a minute. So we teach them. Yeah. ओके तो आपके किड्स स्पेशल क्लासेस भी होते हैं ऐसा Yeah. Sometimes या occasion. नाइस नाइस कंसेप्ट Yeah. या करेक्ट सबको सब चीजें आनी चाहिए राइट या thank you so much Jhalak for coming on podcast we come to an end of our interview it was really nice meeting you it was really a yummy time of afternoon that we have spent together thank you so much for adding salt in our life it's a very important ingredient वो salt नहीं होगा तो हमें पता चलेगा कि वो नहीं है तो दैट्स हाउ women आर राइट वो जब होते हैं तब इतना पता नहीं चलता है जब वो नहीं होते तो वी फील द एब्सेंस so thank you for joining us to the podcast. Thank you so much, Ella, for your time. Thank you so much. Thanks a lot. Really, thanks one more time. I just enjoyed it very much, and I hope जो भी women से सुन रही है, if they have something in mind, they will do. They will take some first step towards that. Yeah, at least let's hope. Exactly. Okay, thank you. Thank you.